تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو کرم و احسان کرنے والا ہے، بڑی نعمتوں اور عظیم احسان والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی تعریف کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جو یکتا اور غلبہ والا ہے، صرف اسی کے ہاتھ فضل و جاری عطا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ رسول ہیں، جو چنیدہ اور پسندیدہ نبی ہیں۔ اللہ درود نازل فرمایا آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جب تک رات و دن ایک کے بعد دیگرے آج آتے جاتے رہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ کا تقوی بہترین لباس اور توشہ ہے اور رب العباد کی بخشش کا سب سے افضل وسیلہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے فرقان مقرر کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں معاف کرے گا، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ لوگوں، یہ ہر مسلمان کے یہاں معلوم باتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو ایسے فضل سے نوازنے والا ہے جس کی نہ کوئی نظیر ہے اور نہ انتہا۔ مخلوقات پر اللہ کی کتنی احسانات ہیں اور اس نے بندوں کو کتنی عظیم نعمتوں اور کتنے بڑے عطیات سے نوازا ہے، اور سب سے اہم اور عظیم فضل توحید ہے، جو اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے لیے دین و عبادت کو خالص کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں سے رسول علیہ السلام اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جن کی بعثت کا اللہ نے امت پر احسان جتلایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھی اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب با حکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اسی طرح اس امت محمدیہ پر اللہ کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے اس کا انتخاب فرمایا اور اسے معزز کتاب کا وارث بنایا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے۔ اور مومنوں پر اللہ کے فضل کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنایا اور ان کے دلوں میں اسے مزین کر دیا، ساتھ ہی ان کی نگاہوں میں کفر اور چھوٹے بڑے گناہوں کو ناپسندیدہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ راہ یافتہ ہیں اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ ان پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے اور انہیں اپنے نفسوں کو پاک کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے۔ اسی طرح ان پر اللہ کے فضل میں سے انہیں توفیق دینا، ادب سکھلانا، انہیں ایسی چیز کی تعلیم دینا جسے وہ جانتے نہیں تھے، انہیں مختلف اقسام کی مصلحتوں کی رہنمائی کرنا، شیطان کے فندوں سے ڈرانا اور اس کی پیروی سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ اللہ کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ انہیں فتح یابی، غنیمت، مدد، کامیابی اور اقتدار سے نوازتا ہے۔ یہ سب انعام و احسان کرنے والے اللہ سبحانہ کی طرف منسوب کیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا، جب انہوں نے ملکہ سبا کا تخت اپنے سامنے حاضر
हाजिर और मौजूद पाया तो फरमाने लगे यही मेरे रब का फضل है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही फायदे के लिए शुक्रगुजारी करता है और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेनियाज और करीम है। बंदों पर अल्लाह के एहसान में से ये है कि वो उन्हें फक्र फाकर और तंगदस्ती से बेनियाज करता है। अल्लाह ताला का फरमान है अगर तुम्हें मुफलिसी का खौफ है तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपने फضل से अगर चाहे। चुनांचे कमाइयों और तिजारतों में अल्लाह का फضل तलाश करते रहते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है बाज दोस्त जमीन में चल फिर कर अल्लाह ताला का फضل तलाश करते हैं। बंदों पर अल्लाह के फضل में से ये है कि उसने उनके लिए रात बनाई ताकि उसमें आराम करें और राहत हासिल करें और दिन को रोशन बनाया ताकि उसमें वो अपने मामलात जिंदगानी को चलाएं। अल्लाह ताला का फरमान है अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रात बना दी कि तुम उसमें आराम हासिल करो और दिन को देखने वाला बना दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फضل और करम वाला है लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजारी नहीं करते। लोगों पर अल्लाह के फضل में से उसका उनकी नाफरमानी और कुफ्र पर उन्हें फौरी सजा ना देना है। अल्लाह ताला ने फरमाया यकीनन आपका परवरदिगार तमाम लोगों पर बड़े ही फضل वाला है लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। ईमानी भाइयों बेशक अल्लाह ताला पसंद फरमाता है कि भलाई और नेकी करने वालों को आखिरत में भरपूर अज्र सवाब और फضل से नवाजे। अल्लाह ताला का फरमान है और हर फضل वाले को फضل अता करेगा यानी हर नेक अमल करने वाले को उसके अमल का सवाब अता करेगा। नीज अल्लाह ताला ने फरमाया बस जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उसे मजबूत पकड़ लिया उन्हें तो अनकरीब अपनी रहमत और फضل में दाखिल कर लेगा यानी उन पर रहम करके उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा और उनका सवाब बढ़ाएगा और उनके दर्जात बुलंद फरमाएगा। चुनांचे वो अपने ऊपर अपने रब का फضل महसूस करते हुए उसके शुक्रगुजार होंगे और कहेंगे जिसने हमको अपने फضل से हमेशा रहने के मकाम में ला उतारा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को भी उसका अमल जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। सहाबा ने पूछा आप भी नहीं अरे अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया मैं भी नहीं मगर एक ही अल्लाह मुझे फضل और रहमत से ढांप ले। और ईमान वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया आप मुमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फضل है। और अल्लाह ताला ने इस बड़े फضل को अपने इस फरमान में बयान फरमाया है और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए वो बेहश्तों के बागात में होंगे। वो जो ख्वाहिश करें अपने रब के पास मौजूद पाएंगे। यही है बड़ा फضل। और आखिरत में मुमिन जन्नत और जन्नत में उनके लिए तैयार शुदा नेमतों की खुशखबरी से खुश होंगे। और जहाँ तक दुनिया और उसकी फना होने वाली बेकार चीज और खत्म होने वाली हकीर मता की बात है तो इस लायक नहीं है तो इस लायक ही नहीं कि उससे खुश हुआ जाए। अल्लाह ने उस शख्स की मजम्मत की है जो ऐसा करता है। अल्लाह सुब्हाना ने फरमाया और वो दुनियावी जिंदगी से खुश हो गए। जिस अल्लाह ताला ने फरमाया आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के इस इनाम और रहमत पर खुश हो जाना चाहिए। वो उससे बदरजहा बेहतर है जिसको जमा कर रहे हैं। अल्लाह ताला का फضل और उसकी रहमत उसके दीन और शरीयत की तरफ रहनुमाई है और उसमें सबसे खास कुरान मजीद और ईमान है। मुसलमानों बंदों के पास जो भी रोजी निअमत आफियत और नुसरत है वो सब बंदों पर अल्लाह ताला का फضل और एहसान है। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे पास जितनी भी निअमतें हैं सब उसी की दी हुई हैं और फضل सिर्फ अल्लाह ही से मांगा जाए। और ये कि सारा फضل अल्लाह ही के हाथ है। वो जिसे चाहे दे वो बेहतर जानता है कि कौन फضل का अहल है और उसे अता करता है। इसलिए हम पर वाजिब है कि हम अल्लाह ताला से उसका फضل मांगे और उसके इस फरमान पर अमल करें और अल्लाह से उसका फضل मांगो यानी अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत के मामलात में मजीद एहसान व इनाम मांगो क्योंकि हम अपने रब के फضل से कभी भी बेनियाज नहीं हो सकते। शायर कहता है अल्लाह ताला का फضل मेरे आंगन पर छाया हुआ है और जिधर मैं देखता हूँ उधर से वो नजर आ रहा है। ताहम मैं उससे मजीद फضل तलब करता हूँ अगरचे मैं फरियादी के समुंदरों में गोता लगा रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि आप अल्लाह से उसका फضل मांगते और आपने हमें रहनुमाई की कि हम में से कोई जब मस्जिद से निकले तो कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फضलिक यानी ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरा फضل मांगता हूँ। और हदीस में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक मेहमान को ठहराया तो अपनी बीवियों के पास खाना लेने के लिए भेजा कि अपने मेहमान की खातिर तवा
तवाज़ु फरमाए, मगर उनके पास कुछ नहीं मिला तो आपने ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फضل और रहमत का सवाल करता हूँ कि तू ही इसका मालिक है। इसके बाद ही आपके पास एक भुनी हुई बकरी बतौर तोहफा पेश की गई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला के फضل में से है और हम रहमत का इंतजार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफर में होते और वक्त सहर में दाखिल होते तो फरमाती, सुनने वाले ने अल्लाह की हम्द और हमारे ऊपर उसके खूबसूरत एहसान को सुना, ऐ अल्लाह, हमारा साथी बन और हम पर अपना फضل फरमा, इस हाल में कि मैं जहन्नम से अल्लाह की पनाह लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, हम पर अपना एहसान फरमा, यानी नेमत को दायमी बनाकर हम पर एहसान फरमा और उस नेमत के हुकूक अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला ने अपने नबी पर फضل फरमाया और उन्हें बड़ी इज्जत बख्शी। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह ताला का तुझ पर बड़ा अजीम फضل है। नीज अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन आप पर उसका बड़ा ही फضل है। अल्लाह ने आपको रिसालत के लिए चुना और आप पर अपनी मुअज़्ज़ज़ किताब नाजिल फरमाई, आपके लिए हक को वाज़ेह किया, अपनी नुसरत से आपको तक़वियत पहुँचाई, कदी और गुमराही से आपको महफूज रखा, आपके गुनाह माफ कर दिए, आपको औलाद आदम का सरदार बनाया, आपको मकाम महमूद अता किया, और इनके अलावा आप पर अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए कुरान और सुन्नत में बरकत दे और हमें उनकी आयत व हिकमत से फायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और अपने लिए और आपके लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। खलवत व जलवत में अल्लाह के लिए हर तरह की तारीफ है। नेमत व फضل उसकी मिल्कियत है और उसी के लिए अच्छी तारीफ है। सखावत, भलाई और एहसानात वाला है। उसका करम व एहसान बढ़ा हुआ है और उसकी भलाई बहुत ज्यादा है। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह दुरूद नाजिल फरमाए आप पर और आपके आलो अस्हाब पर। मुसलमानों की जमात अल्लाह की हिकमत का तकाजा था कि उम्मत मुहम्मदिया की उम्र मुख्तसर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल तक है और उनमें बहुत कम लोग हुए जो इससे तजावुज करेंगे। और बावजूद इसके कि उनकी उम्र मुख्तसर है और पिछली कौमों की जैसी लंबी उम्र नहीं है, मगर उन पर अल्लाह के फضل और रहमत में से ये है कि उन्हें उसके बदले ऐसी रातों, वक्तों और जगहों और मौके से नवाजा है जिनसे उनके आमाल ज्यादा होते हैं और उनके अजर सवाब और नेकियां दो चंद होती हैं। चुनांचे वो थोड़े दिनों में वो हासिल कर लेते हैं, जो पिछले लोग लंबी उम्र में हासिल करते थे। अल्लाह के बंदो, मुबारक आखिरी अशरा की बाद नसीम, फरावा, खैर और आदिम फضل लिए हुए चल पड़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में वो मेहनत करते जो दूसरी रातों में नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें इत्तिकाफ करते और शब कदर तलाश करते। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आता है, जब आखिरी अशरा दाखिल हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बेदारी फरमाते, अपने घर वालों को जगाते, जद्दोजहद करते और अपनी कमर कस लेते। इसलिए हम पर वाजिब है कि हम इन रातों में अल्लाह की रहमत और उसके वसी फضل के झोंकों का इस्तक़बाल करें, अल्लाह से मग़फ़िरत और अज़ीम माफ़ी मांगे, इनमें कसरत से ताअत के काम करें और गुनाहों कुर्बत के कामों के जरिए तक़र्रुब हासिल करें। वक्त बर्बाद करने और गुनाहों के इर्तिकाब से दूर रहें। हो सकता है हमारे और इन रातों को दोबारा पाने के दरमियान लज़्ज़तों को खत्म करने वाली मौत हायल हो जाए। अल्लाह के बंदो, अगर इन बुलंद रातों की फजीलत और मंजिलत सिर्फ ये हो कि उनमें मुअज़्ज़ज़ शब क़द्र है तो यही काफी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, चुनांचे इनमें इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान के साथ और अजर की उम्मीद करते हुए शब क़द्र में क़याम करेगा उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रमजान के आखिरी अशरे में शब क़द्र तलाश करो और शब क़द्र की उम्मीद इस अशरा की ताक रातों में ज्यादा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आखिरी अशरे की ताक रातों में शब क़द्र तलाश करो। इसलिए आप पुख्ता आज़म करें और अज़ाइम को महमेज दें, क्योंकि जिसने इस रात के शरफ को पा लिया वो कामयाब वो शाद काम हुआ और जिसने उसे खो दिया वो नाकाम और महरूम रहा। आप मौके को गनीमत जाने और कोताही और गफलत से बचें। रमजान का महीना गुजर चुका और उसकी 2/3 खत्म हो चुकी है। सो ऐ खैर के जुए आगे आ, ऐ माफी के उम्मीदवार चले आ और ऐ जन्नत के तलबगार आगे बढ़। और इसके बाद आप दुरूद व सलाम भेजें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह तू इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा। ऐ अल्लाह तू शिर्क और मुशरिकीन को दलील और रसवा कर। ऐ अल्लाह तू हमारे वतनों को और तमाम मुसलमानों के मुल्कों को खुशहाली और अमन व अमान से नवाज। ऐ अल्लाह हम सब से तू आजमाइशों को और फितनों को, हर तरह के फितनों को तू दूर फरमा और हमारे इस मुल्क से खुसूसी इस तौर पर और तमाम मुसलमानों के मुल्क से अमूमी तौर पर दूर फरमा। ऐ अल्लाह तू सिपाहियों की, हमारे सिपाहियों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह तू उनके लिए तू मददगार हो जा। ऐ अल्लाह तू हमें हमारे शहरों में, हमारे घरों में तू अमन अता फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारे वली अमल को उस काम की तौफीक अता फरमा जिसमें भलाई हो। ऐ अल्लाह हम तुझसे तेरा अजीम फضل मांगते हैं। ऐ वसी फضل वाला और वसी अता वाला। ऐ अल्लाह तू हमें उनमें से बना जो रोजे रखे और क़याम किया। ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, इसलिए तू हमें माफ फरमा दे।